پہلی مرتبہ اپنے شہر، ماں باپ، بہن بھائی اور اپنی پیاری دادی جان سے دور جانے کا خیال ستا تو رہا تھا، مگر ایک طرح آزادی بھی تھی۔ ہاسٹل میں رہنا تو میرا بہت پرانا شوق تھا جو اب میرے اس کالج میں داخلے سے پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہمارے چھوٹے سے شہر بخت خان میں لڑکیوں کے لیے کوئی اچھا کالج نہیں تھا۔ اس کالج سے میں نے جیسے تیسے انٹر تو کر لیا، مگر میں اب اس میں مزید نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس بڑے کالج میں داخلہ فارم جمع تو کروا دیے تھے، مگر ایک سوال سامنے کھڑا تھا، اگر داخلہ ہو بھی گیا تو رہوں گی کہاں؟ میرے امی اور ابو لڑکیوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے، اس لیے جب میرا ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں کے مشورے کے بعد مجھے اس ہاسٹل میں، جو کہ شہر کا بہت معزز اور اچھی ریپوٹیشن والا ہاسٹل تھا، میرا رہنے کا بندوبست کر دیا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میرا کالج صرف چند منٹ کی واک پہ تھا۔ ابو مجھے خود چھوڑنے آئے اور مجھے کمرے تک چھوڑ کر بہت ساری ہدایتوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ ابو کے جاتے ہی جیسے میرا سارا اعتماد رخصت ہو گیا، میں دھم سے بستر پر بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ اس وقت کمرے میں میڈم نفیسہ داخل ہوئیں۔ میڈم نفیسہ اس ہاسٹل کی سپروائزر تھیں۔ گھبراؤ نہیں، صرف چند دن سب کو ہوم سکنس ہوتی ہے، پھر عادی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مجھے پیار سے تسلی دی۔ یہ دیکھو، انہوں نے اپنے ساتھ کھڑی تقریباً میری عمر کی لڑکی سے میرا تعارف کروایا۔ یہ لیلا ہے، تمہاری روم میٹ۔ میں نے انتہائی دلچسپی سے لیلا کا جائزہ لیا، آخر دن رات اس کے ساتھ رہنا تھا۔ لیلا میری ہم عمر ایک عام دبلی پتلی لڑکی نظر آئی۔ میرے سخت جوش کے جواب میں وہ تو مسکرائی تک نہیں، صرف اپنا برف جیسا سرد ہاتھ میرے ہاتھ سے بادل نخواستہ ٹکرا کر چھوڑ دیا۔ لیلا بھی آج ہی اس ہاسٹل میں آئی ہے، میڈم نفیسہ نے مجھے بتایا۔ تم دونوں جلدی سے دوستی کر لو تاکہ کبھی بور ہی نہ ہو، گھر والوں کی یاد بھی نہ آئے۔ لیلا نے میڈم نفیسہ کے مشورے پر زیادہ عمل نہیں کیا، وہ اپنا سامان اپنی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنے کپڑے بیگ میں نکال کر الماری میں لگانے لگی۔ دوسرے روز ہمارا کالج شروع ہو گیا۔ لیلا بھی میرے کالج میں ہی تھی، مگر اس کے سبجیکٹس الگ تھے، اس لیے ہماری کلاسیں الگ ہوتی تھی۔ چند روز پڑھائی میں لگ کر واقعی میرا دل ہاسٹل میں لگ گیا تھا، مگر لیلا سے میری کوئی خاص بات چیت تک نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود تو مجھے کوئی بات نہ کرنے دیتی تھی، بلکہ میری باتوں کا جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ ہر ویکنڈ پر ہاسٹل کی زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں پر چلی جاتی تھیں، مگر کچھ لڑکیاں جن کی تعداد برائے نام تھی وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں وہ تھیں جن کے گھر ہاسٹل سے کئی گھنٹوں کی مسافت پر تھے۔ میں اور لیلا انہی لڑکیوں میں شامل تھی۔ لیلا، تم کس جگہ سے آتی ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا گھر کس شہر میں ہے؟ ایسے ہی ایک ویکنڈ پر جب ہاسٹل آدھا خالی ہو گیا تھا اور میں سخت بور ہو رہی تھی، میں نے لیلا سے سوال کیا۔ وہ نہ جانے کس بسیطہ کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ میرے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے اس جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں سخت گڑبڑا گئی۔ وہ ایسے ہی بھائی، تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر نہ جانے کیا کہنے لگی، اور میں خاک سمجھ بھی نہ سکی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں سخت محنت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی ہاں، کوشش، کیونکہ انٹر میں اچھے مارکس لے آنا تو آسان تھا، مگر اب پڑھائی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے سخت محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ ہمارے اکثر ٹیسٹ ہوتے تھے جن میں میرے نمبر بالکل اچھے نہیں آ رہے تھے۔ کیا کروں؟ کتاب پر نظر جما کر میں نے سوچا، اس طرح تو میں فیل ہو جاؤں گی، لگتا ہے ٹیوشن لینی پڑے گی۔ جب امی کا فون آیا تو میں نے امی سے اپنی مشکل کا ذکر کیا۔ دیکھو بیٹا، امی نے میری بات کے جواب میں کہا، اپنے گھر کے حالات تو تم جانتی ہو۔ تمہارے ابو کی تنخواہ مزید اخراجات کی اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے کالج کی فیس، تمہارے ہاسٹل کا کرایہ، تمہارے میس بل، یہ سب کچھ ملا کر اچھا خاصا فکر بن جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تمہارے 2 چھوٹے بہن بھائی اور بھی ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں۔ تم خود محنت کرو یا کسی لڑکی سے مدد لے لیا کرو۔ امی کے طویل لیکچر کے بعد تو کسی بحث کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ محنت تو میں پہلے ہی کر رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کالج میں ٹیچرز کا سمجھایا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور لڑکی کس لڑکی سے مدد لوں؟ میری روم میٹ تو بات کرنے کی روادار نہیں، نہ جانے کیوں۔ یہ خود پتہ نہیں کیا پڑھتی تھی، کیسے پاس ہو جاتی تھی، اس کو میں نے کبھی ٹیکسٹ بک کھولے نہیں دیکھا تھا۔
हमेशा कोई बोसीदा नावल इसके हाथ में होता है, मैंने चिढ़कर सोचा। लैला ने जैसे मेरी सोच पढ़ ली थी, इसने आंखें नावल से हटाकर मेरी तरफ देखा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो, इसने पूछा। वो कुछ नहीं, मैंने जैसे घबरा कर कहा। इम्तिहानों की तारीख आने वाली है और कोई ख़ास तैयारी नहीं है। तुम्हारी तैयारी कैसी है, मैंने इससे कहा, जिस पर जवाब में इसने हाथ में पकड़ा नावल अपने चेहरे पर आगे कर लिया। सख्त तब कर मैंने सोचा, बदतमीज़, बदलिहाज, शायद इस नापसंदीदा रूममेट की वजह से मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। मैंने खुद अपना तज्जिया किया। दूसरे दिन मैं मैडम नफीसा के सामने खड़ी थी। मैडम प्लीज़ आप मेरी रूममेट बदल दें, या तो मेरा रूम चेंज कर दें, मुझे किसी और लड़की के साथ शिफ्ट कर दें। मगर क्यों, मैडम नफीसा हैरान रह गई। इतने हफ्ते हो गए तुमको इसके साथ रूम शेयर करते, तो अब अचानक क्या हुआ? बस मैडम, अब मैं इसके साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती। इसका रवैया ठीक नहीं है, वो सख्त मगरूर है, मैंने इसरार किया। मगरूर है? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैडम हैरान हुई। इसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है? ये बात नहीं मैडम, तमीज़ या बदतमीज़ी क्या होती है? वो तो बात तक करना पसंद नहीं करती। हद ये है कि वो किसी बात का जवाब भी नहीं देती। मैडम ने गहरा सांस लिया। तो ये बात है। देखो सानिया, तुम यहाँ पढ़ने आती हो, गप्पे लगाने या किसी से दोस्तियाँ बढ़ाने नहीं आती। अगर तुम्हारी रूममेट खामोश मिजाज है तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम अपना दिल पढ़ाई में लगाओ। जहाँ तक लैला की बात है, इसका ताल्लुक बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है। इसके घरों में लड़कियों को घर से बाहर तक निकलने की इजाज़त नहीं होती। इसके वालिद की सख्ती से हिदायत हैं कि लैला को कभी कॉलेज के अलावा बाहर न निकलने दिया जाए। यकीनन वो लड़कियों की आपस में दोस्ती के भी खिलाफ होंगे, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करती है। मगर मैडम प्लीज़ आप मुझे किसी रूम में शिफ्ट कर दें, मैं मज़ीद रही। ओके सानिया, अभी तो तमाम रूम्स में लड़कियां हैं, फिर भी अगर कोई जगह खाली हुई तो मैं तुम्हें शिफ्ट करने की कोशिश करूंगी। वो मुझे टाल कर चली गई। मैं ठंडी सांस भरकर रह गई। अगले कई दिन इस तरह गुजर गए। कॉलेज में पढ़ाई मुश्किल तर साबित हो रही थी। लैला का सर्द रवैया इस तरह बरकरार था। क्या करूं दादी अम्मा? इस दिन फ़ोन पर दादी से बात करते हुए जैसे मैं रो ही पड़ी। लगता ही नहीं मैं वो सानिया हूँ। एक दफ़ा का पढ़ा हुआ मुझे याद हो जाता था। अब सारी रात गुजर जाती है रट्टे लगाते, मगर सुबह जहन खाली स्लेट बना होता है। मैं दादी से अपनी मुश्किल बयान की तो फिक्र न कर सानी, दादी ने मुझे तसल्ली दी। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो अल्लाह से मदद मांगती है। अच्छी बात है बेटा, नमाज पढ़ा करो, मगर साथ साथ जहन को खोलने के लिए अल्लाह का कलाम भी पढ़ा करो, दादी अम्मा ने प्यार से समझाया। लंबे वजीफ़े नहीं पढ़ सकती दादी अम्मा, मैंने कहा इतना टाइम नहीं होता। लंबे वजीफ़े नहीं बेटा, बस तू ऐसा कर के ईशा की नमाज के बाद तस्बीह ले और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर, अपनी किताबों पर दम कर और फिर सबक याद कर। देख कैसा अच्छा याद होगा कि उम्र भर भी नहीं भूलेगा, दादी ने अपने अंदाज में मुझे समझाया। इस दिन रात को मैंने ईशा की नमाज अदा की। नमाज के लिए तमाम लड़कियां जो पाबंदी से नमाज अदा करती थीं हॉस्टल में प्रे एरिया में जमा होती थीं और नमाज पढ़ती थी। मैं भी वही नमाज अदा करती थी। नमाज पढ़कर मैं अपने कमरे में आ गई, अपनी किताबों का बैग खोला और पढ़ने लगी, बल्कि पढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर मजाल है एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया हो। लाइट ऑफ करो। अपने बिस्तर पर चेहरे पर बाजू रखकर सोती लैला ने लाइट की तरफ इशारा किया। मैंने ठंडी सांस भरकर लाइट ऑफ कर दी और साइड लैंप जला लिया। हॉस्टल के रूल्स के मुताबिक रात 11 बजे लाइट ऑफ कर देते हैं। जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है वो लैंप जला लेते हैं। ये एक और मुसीबत, मैंने जलकर सोचा। खुद तो कमबख्त कभी पढ़ती नज़र नहीं आती, अब लैंप की मदद रोशनी में पढ़ूंगी, मगर कैसे? एक लफ्ज़ याद नहीं हो रहा था। अचानक मुझे दादी के अल्फाज याद आ गए। मैंने अपने परस से अम्मी की दी हुई मक्का शरीफ से ली हुई तस्बीह निकाली, सर पर दुपट्टा जमाया और आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। आयतल कुर्सी तो रोज़ दिन में भी कई बार पढ़ती थी, मगर न जाने क्यों रात को एक पहर लैंप की रोशनी में आयतल कुर्सी पढ़ने में एक अजीब सुरूर आने लगा था। चंद मिनटों के बाद लगा मेरी ज़ुबान नहीं, मेरा दिल मेरा रवां रवां विर्द कर रहा है। मेरी आंखें बंद होने लगीं, मेरे जहन से जैसे बादल छटने लगे थे। मैं मुकम्मल इन्हमाक से आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, इतनी के पत्ता गिरे तो आवाज़ आई कि अचानक एक आवाज़ मेरे कानों में टकराई, जैसे कोई करा रहा हो। मैंने घबरा कर आंखें खोली। वो इस खामोश कमरे में लैंप की मदम रोशनी में मेरी रूममेट लैला अपने बेड पर दो जानू बैठी थी, जैसे नमाज पढ़ने के दरमियान बैठते हैं। इसके हाथ पीछे की जानिब मुड़े हुए थे और वो जैसे करा रही थी।
कराह क्या रही थी, जैसे गैर इंसानी आवाज़ें लगा रही थी। मेरा दिल बंद होने लगा। लैला क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी? मैं पागलों की तरह चीखते हुए बाहर भागी। हरगिज़ नहीं मैडम, अब मैं लैला के साथ नहीं रहूँगी। मेरी शदीद इल्तिजा के जवाब में मैडम ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं शो किया। देखो सानिया, जब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने ये ड्रामा रचाया। मुझे सख्त अफसोस हुआ। ड्रामा नहीं मैडम, प्लीज़ आप मेरा यकीन करें। मैं एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। मैडम नफीसा चंद लम्हे मुझे देखती रहीं। ठीक है, मैं जल्द कोशिश करूँगी कि तुमको कोई और रूम दे दिया जाए, जब तक तुम इस कमरे में रहो। हरगिज़ नहीं मैडम, मैं घबरा कर कहा। मैं एक लम्हा भी वहाँ नहीं रहूँगी। इस रात जो कुछ हुआ वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। लैला इस वक्त मैडम नफीसा के ऑफिस में दाखिल हुई। लैला को देखकर चंद लम्हे के लिए मेरी जान निकल गई, मगर इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल हमेशा वाली लैला लग रही थी। असल में मैं बीमार हूँ। इसने शर्मिंदगी से सर झुकाया। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इसने इतने अरसे में पहली मर्तबा अपने बारे में ज़ुबान खोली थी। असल में हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है, इतना कि आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ महज मामूली शक पर कत्ल कर देना आम बात है। हमारे यहाँ औरतों को इतना घूट कर दबा कर रखा जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ एक दिन भी वहाँ न रह सकें। मैं अपने बाबा की वाहिद बेटी हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं इस हॉस्टल में आ सकी हूँ, वरना तो हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने तो स्कूल तक की शक्ल नहीं देखी। लैला की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं और मैडम नफीसा जैसे मुंह खोले इसकी रोदात सुन रहे थे। मैं गांव में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैंने अपने घर में औरतों पर वो मजालिम होते देखे हैं कि मैं मिर्गी की मरीज़ बन गई हूँ। कोई शोर, कोई हादसा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझ पर दौरा पड़ जाता है, मेरे हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ओह, मैंने ठंडी सांस भरी। तो ये बात है जिसको मैं कहीं और जोड़ रही थी। अगर तुमको मेरी वजह से तकलीफ हुई तो आई एम सॉरी। लैला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने मैडम नफीसा को अलग रूम के लिए मना कर दिया और लैला के साथ ही रहने लगी। मगर इस रोज़ वाले वाक़े के बाद इतना ज़रूर हुआ कि लैला मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें करने लगी। कभी वो मुझे अपने ख़ानदान के मर्दों की बेरहमी की वाक़यात सुनाती तो इसके चेहरे पर नफ़रत झलकने लगती। मेरे ख़ानदान के मर्दों के लिए कत्ल करना, खून बहाना मामूली बात है। ये सब सुनकर मेरे जिस्म से जान ही निकल जाती। मैं वैसे ही बहुत डरपोक वाक़या हुई थी। बस जल्दी से ये वक्त गुजरे, मैं इम्तिहान पास करूं, अपने घर जाऊं। बहुत दिन हो गए घर गए, मगर इम्तिहान पास हों तो कैसे? पढ़ाई थी कि मुश्किल तर होती जा रही थी। दूसरे दिन भी मेरा एक अहम टेस्ट था। मैं किताबें लेकर बैठ गई। लाइट ऑफ कर दो, लैला की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ओफो, मैंने कोफ्त महसूस की। ये क्या, मेरा टेबल लैंप नहीं जला? शायद इसका बल्ब फ्यूज़ हो गया है। लैला प्लीज़ तुम आंखों पर तकिया रख लो, मैंने इल्तिजा की। मेरा लैंप ऑन नहीं हो रहा। तुम्हें पता है मैं जलती लाइट में नहीं सो सकती, लैला ने गुर्रा कर कहा। मैंने किताब में से नज़र हटाए बगैर सोचा, गो टू हेल। कोशिश करो लैला प्लीज़। इसके हलक से जैसे किसी जानवर की आवाज़ बरामद हुई। और ये क्या? मेरा दिल हलक में आ गया। लैला अपने बेड पर बैठी मुझे खूनी निगाहों से घूर रही थी। इसकी आंखें इसकी नहीं थी, इनमें कोई और था। चंद लम्हे मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने के बाद इसने हाथ बढ़ाया। इसके हाथ बढ़ते बढ़ते वहीं बैठे बैठे इसका हाथ लंबा होता गया, यहाँ तक कि स्विच बोर्ड तक पहुँच गया और इसने लाइट ऑफ कर दी। तो दोस्तों और भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।